Continuing our understanding of the short story, The Three Dancing Goats, prescribed for the students of BA Part 1 English Literature in Paper 2. The marriage invitation. After a few days, the landowner intends to get his daughter married and he invites all the preferred suitors who wish to marry his daughter. अब उस कुछ दिनों बाद जो ज़मींदार होता है वो ये अनाउंस करता है कि उसको अपनी बेटी का विवाह करना है और हर तरफ निमंत्रण भेजे जाते हैं ताकि लोग आकर उस लड़की की शादी की बात चलाएं। There was just a little catch in the scenario. लेकिन उसमें एक छोटी सी अड़चन थी. Only the suitor who could tell the color of the 3 hair strands hidden behind the black tresses of the daughter would be able to marry his daughter. वो आदमी जो ये बता सके कि उसके लड़की के काले बालों में छिपे हुए जो 3 अलग अलग रंग के बाल हैं वो कौन से रंग के बाल हैं वो अगर बता सकेगा तो वो उनकी बेटी से शादी कर पाएगा। अब याद रहे कि वो जो 3 रंगीन बाल थे वो उनके काले बालों में छुपे हुए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे किसी को भी। Many suitors from all over the country visit the landlord but fail to guess the color. कोई भी उस कलर को गैस नहीं कर सकता है या सही तरीके से नहीं बता पाए। सिंधु on hearing the news is deeply angered and curses his life of a poor peasant. अब उसको भी पता चलता है, हमारे हीरो को गुस्सा भी आता है क्योंकि वो तो गरीब है, वो तो पैसे वाला नहीं है, वो कैसे उस लड़की का हाथ जाकर मांगेगा। He gives up on his idea to marry the daughter, thinking that the girl herself would not like to be the wife of a poor person. But one day, while watching the dance of the 3 goats, his ambitions again arise and he again remembers the fortune words of the old woman. लेकिन एक दिन उसको उस बूढ़ी औरत के शब्द याद आते हैं और वो फिर से सोचता है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। One day he finds a well-dressed man who was possibly a suitor, lost and searching the direction for the landlord's daughter. अब इत्तेफाक से एक दिन एक आदमी उसको मिलता है जो लग रहा है, पता चल जाता है, समझ में आता है कि वो उस लड़की का हाथ मांगने के लिए उस ज़मींदार की हवेली तक जाने का रास्ता पूछ रहा होता है। मैनर यानी कि हवेली। Sindhu agrees to take him to the place and intentionally taunts the suitor that only if he wasn't a peasant he could have won the hand of the landlord's daughter, as he knows the secret behind the hair strands. वो उसको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाता है और वो ये भी कहता है कि अगर वो एक गरीब किसान नहीं होता तो वो आसानी से उस लड़की का हाथ मांग लेता क्योंकि उसको उन बालों के बारे में जो सीक्रेट है, जो राज है, वो उसको पता है। आप याद कीजिएगा उस लड़की ने उन रंगों के बारे में उसको बताया था। The suitor is surprised on his shocking words. He asks for the secret and gives Sindhu the greed of a reward. वो सूटर जो है वो उससे मांगता है, वो राज जानना चाहता है लेकिन सिंधु नहीं बताता। सिंधु refuses, वो मना कर देता है to tell him the secret and says he cannot tell until he is brought in the presence of the daughter. वो ये नहीं बता पाएगा जब तक कि वो उस लड़की के सामने नहीं ले जाया जाता। In the disguise of the suitor's servant and in beautiful clothes and a silk turban given to him by the suitor, Sindhu reaches the landlord's manor. वो अपना भेष बदल के उस धनवान आदमी का नौकर बन के और नए शानदार कपड़े पहन के वो चला जाता है वहाँ पर हवेली में। The manor was well decorated and suitors were present everywhere, trying to guess the color of the 3 hair strands. हवेली सजी हुई है और हर तरफ लोग खड़े हैं और उन 3 छुपे हुए बालों के रंगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। The daughter and the landlord were sitting on a raised platform. दोनों पिता पुत्री ऊपर एक ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। Nobody was able to recognize Sindhu. सिंधु को किसी ने पहचाना नहीं।
Suddenly, from the crowd, Sindhu, in a very deep and dignified voice, shouts the color of the strands, which was one pure white, the color of the diamond, one deep red, the color of the ruby, and one light green, the color of the emerald. अचानक से सिंधु ऊंची आवाज़ में बताता है कि एक सफ़ेद रंग का बाल है, हीरे के रंग का, एक गहरे लाल रंग का बाल है, रूबी यानी कि माणक के रंग का, एक हरे रंग का बाल है यानी कि एमरल्ड यानी पन्ने के रंग का. द लैंडलॉर्ड कन्फर्म्स दैट हिज आंसर इज़ राइट. उसका जवाब सही होता है. द रेवलेशन ऑफ सिंधुज आइडेंटिटी. सिंधु रिमूव्स हिज डिस्गाइज एंड एवरी पर्सन इन द मैनर इज शॉक्ड. वो अपना भेस उतार देता है और सब उसको देख के शॉक्ड रह जाते हैं. द लैंडलॉर्ड इज़ ऑल्सो डिस्ट्रेस्ड टू हैव अ पेजेंट एज अ सन इन लॉ. ज़मींदार भी खुश नहीं होता क्योंकि वो एक गरीब किसान से अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं. ही पीसफुली इंक्वायर्स सिंधु एंड सिंधु टेल्स हिम द होल टेल दैट हाउ ही गॉट टू नो द सीक्रेट बिहाइंड द हेयर स्ट्रैंड्स. ज़मींदार सिंधु से सारी बात जानता है और सिंधु उनको सच्चाई बता देता है. आफ्टर लिसनिंग टू सिंधु, the landlord says that as his daughter is the one who told him the secret, she is now his wife. वो कहता है कि क्योंकि मेरी डॉटर ने तुम्हारे को सीक्रेट बताई, अब तुम इससे शादी कर सकते हो. All the suitors present in the area call this an error of destiny, but Sindhu corrects them and says, this is a triumph of faith, love and patience. बाकी सब लोग कहते हैं कि ये तो किस्मत गलती से तुम्हारे द्वार आ गई, लेकिन सिंधु कहता है कि नहीं, मेरा विश्वास, मेरा प्यार और मेरे धैर्य ने मुझे ये जीत दिलाई है. बाबा ट्रिंको एंड्स द स्टोरी एंड विशेस हिज ऑडियंस गुड नाइट. तो ये तो कहानी के बारे में था. अब द थ्री गोट्स कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम. या आप पढ़ लीजिएगा अपनी सुविधा अनुसार. व्हाट इज़ फोक लिटरेचर, इसका आंसर दे रखा है. गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ सिंधु विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. इसका भी आंसर दे रखा है आपको, आपके लिए. गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ द लैंडलॉर्ड्स डॉटर विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. वो जो लड़की है उसका चरित्र का आप वर्णन कीजिएगा, उसका भी आंसर आपके लिए दे रखा है. कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आप देख लीजिएगा. ये सब आपके काम आएंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर कॉम्पोजिशन यानी कि डिटेल में आपको लिखना है. पैराग्राफ राइटिंग. डिस्क्राइब द वेरियस वेज ऑफ फाइंडिंग अ ब्राइड ग्रूम इन इंडिया. द स्वयंवर काइंड ऑफ मैरिज इन एंशिएंट मिडीवल इंडिया. ये आप छोड़ सकते हैं, ये आपके लिए नहीं आएगा. और इसके साथ द थ्री डांसिंग गोट्स शॉर्ट स्टोरी जो है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं. थैंक यू.